जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल and this is 511th episode of live analysis. So today is 7th of Feb 2022. We will discuss market strategy, market outlook for tomorrow's session, and how's the market looking after today's decline. So today market has declined, so I don't think so you should be surprised, because that is what we had expected over the weekend. And yesterday also we discussed in a very detailed manner as to why we are not at all expecting any new high to come in the month of February, and possibly even in the month of March. However, that doesn't mean that markets are too bearish or markets are too bullish. Markets are going to remain in a range bound manner with a lot of ups and downs. So this week started with a down move, and let us see where it can take support. And is there a bounce that is coming, or is Nifty going to decline all the way till 16,600 level? So जुड़ जाइए, let us start today's session. I can see some regular faces. I think there was some issue with the notification. The timing was set for tomorrow. That is why I think uh, many people may not have got the notification. Chaliye, anyways, so we will start today's session. So as of now, global markets are slightly positive. European markets are trading in green, and the US market is almost flattish. Nasdaq में थोड़ा सा एक minus 0.5% हो रहा है, whereas I think the global markets are almost buoyant. They are positive. So US market, as you can see, this is the second corrective, and after this one up move should come at least till 46.50. Maybe it can go all the way till 47.70, also 47.20, 47.25. So I'm not very bearish on the US market. I'm not very bullish also, but yes, this is a very good bottom for the time being, and I expect US market to probably come little lower, or maybe it can just consolidate in this range and then move for the higher targets of 46.50 and 47.25, post which, if weakness comes, post which I think there's no if, but there is a very great likelihood that we should start one more round of decline on the lower side. Okay, now suppose even if it goes at the higher side, what it can do is max go till say 5,000 level. That is where the triple top will be made in this particular manner. There is a very strong resistance line. Those are placed at 5,000. So S&P 500 का upside जो है काफी सीमित है, काफी capped है, and 47.25 will be a very great resistance level to watch out for. I don't think it is possible, it is easy for US market to cross that 47.25. अधिक से अधिक यहाँ तक गया तो भी बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि नैस्डैक जो है ये प्रेशर क्रिएट करना शुरू करेगा. The Amazons and all these guys, they are not in a position to keep moving higher. There will be significant profit booking all the way. So US market right now flattish, overall positive, expecting 46.50, 47.20. All these levels must come on the higher side. On the downside, S&P 500 has a very great support at 43.66. That is the 200-day moving average, which was almost flushed for last 5 to 6 sessions over here, but bears could not sustain below this, so bulls got an upper hand, so they have markets in control right now. So any panic correction, any bad news, etc., if at all comes, will be limited to 43.60. This is the hardcore support area. If you are into trading US market, then do not miss this opportunity. It will be a great panic buying opportunity for a good run up till 47.25. So that's a very great 10% up move with a very, very minimum risk and a very high probability. So that's the outlook on the US market. Let's talk about currencies. So currencies may today the NSC segment was closed, so we could not access the forex market in the NSC segment. Spot forex में इस समय US dollar is trying to consolidate. So this is the area where US dollar should take support, right? And from here again it should bounce back. So in the currency space, I'm not expecting any major runaway moves. At best, we can see a range bound move on the US dollar. So downside भी limited है, upside भी limited है, and rotational moves definitely होगा. Okay, so there is no runaway move
that I am looking to happen in the equity or the currency market. But yes, there will be good swings within a broader range. That is what is expected. So यूएस डॉलर में थोड़ा और डिक्लाइन वगैरह हो सकता है, बट ओवरऑल वी आर पॉजिटिव फॉर सच एन अप मूव ओवर देयर. वी विल सी व्हाट डॉलर डज, बिकॉज यहाँ पे डॉलर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल ये एक पॉइंट होगा, बिकॉज इट then the pressure will be on dollar to keep maintaining this uptrend, क्योंकि यूरो जाग चुका है. ओके, यूरो जो है जाग चुका है, तो इस बार यूरो भी काफी टफ फाइट देगा यूएस डॉलर को. सो द प्रेशर विल बी, द ओनस विल बी ऑन यूएस डॉलर, अनलाइक प्रीवियस टाइम्स जहां पे ये होता था. बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक वीकनेस इन द यूरो, डॉलर को ऑटोमेटिक एक पुश मिलता था. ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बिकॉज बहुत कम लोग फॉरेक्स में उतना रुचि रखते हैं. ओके, सो यूरो इज स्लाइटली डाउन टुडे, एंड दैट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, बिकॉज वी हैड अ स्टेलर अप मूव ऑन थर्सडे, देन ऑल्सो ऑन फ्राइडे. सो बहुत ही एक शार्प अपस्विंग आया है यूरो में. सो थोड़ा कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे होगा, थोड़ा सा रेंज बाउंड होगा. ब्रिटिश पाउंड इज ट्राइंग टू रिवर्स ऑन द हायर साइड. ओवरऑल आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन मच. जैसा कल डिस्कस किया था, ब्रॉडली एक ट्राइंगल वगैरह जो है फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, नाउ वन करेंसी जिस पे मैंने हाई बेट्स लगाए हुए हैं वो है यूएसडी जेपीवाई, विच इज डेफिनेटली लुकिंग बुलिश इन द नियर टर्म, which is definitely looking to go higher. Okay, which is definitely looking to go higher, uh, and this means that the JPY INR should go down. Okay, सो ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट है. इस पे ऑलरेडी एक बहुत अच्छी डिक्लाइन हो चुकी है, एंड कंटिन्यू इसमें हम करेंगे. सो JPY INR इज द बेस्ट करेंसी टू प्ले फॉर द शॉर्ट साइड. यूरो INR बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, तो थोड़ा एक 40-50 पैसे का एक जस्ट टेक्निकल पुल बैक आएगा, तो वो भी एक डिसेंट शॉर्ट है. बट याद रखिए सिर्फ टेक्निकल पुल बैक के लिए. GBP INR एज आई एक्सप्लेन 100 to 102.5 का रेंज होगा. I think tomorrow again it might tease that 102 level, and over there we will decide whether to short or to wait for further up move to happen. अगर GBP USD कुछ खास ऊपर नहीं है, तो एक बार आप 102 के आसपास फेड कर सकते हो. मे बी 40-50 पैसे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, बट वापस अगर आता है तो मत करना, बिकॉज इन दैट केस जैसा कल मैंने समझाया था, इट विल ट्राई टू रीच टिल 102.5. बेसिकली जिस तरीके से यूरो ने एक अच्छी कमबैक स्टेज की है, व्हाई शुड ब्रिटिश पाउंड बी लेफ्ट बिहाइंड? सो दैट विल आल्सो ट्राई इट्स बेस्ट to mimic the up move that happened in the euro. So that is why that additional 50% जो है, सॉरी एडिशनल दैट 50 पैसा जो इसमें रेंज में है, वो इस चीज़ के लिए कि अगर जीबीपी यूरो को कॉपी करता है तो ये 50 पैसे का बफर इसलिए हमने रखा है. ठीक है, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल, बिकॉज मेरे ग्रुप में काफ़ी लोग हैं जो करेंसी ट्रेड करते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, सो दैट आप लोग मार्केट आवर्स में इन सब बातों का ध्यान रखिए. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट अस मूव टू कमोडिटी सेगमेंट, जहाँ पे बहुत ही दिलचस्प कुछ हो रहा है, और वो है नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस में कल भी मैंने मना किया था कि इसे बाय नहीं करना है. अगर बाय करना चाहते हो तो वेट करो रिवर्सल होने का, या फिर अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 325 330 के स्लैब में कर सकते हो. ये एक व्यू लेके हम चले थे. टुडे इन मॉर्निंग इटसेल्फ ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया कि दोस्तों नेचुरल गैस के सामने मत आओ, इट्स लाइक अ बर्निंग ट्रेन. और हम कोई धर्मेंद्र, जितेंद्र या विनोद खन्ना तो है नहीं कि उसे जो है बचा लेंगे. करेक्ट, सो लेट अस नॉट कम in front of the burning train. Let it exhaust, let it run out of steam, let it run out of its own natural gas, and then if at all it looks good, we will play again. Now natural gas में कुछ एक खास अपडेट है. ठीक है, what is that update? नेचुरल गैस में इस टाइम दोस्तों अब जो अगला जो ट्रेड बनेगा, ठीक है, आई थिंक इट विल कम लिटिल मोर डाउन, जस्ट अराउंड दिस 295 और 300 स्लैब ओवर हियर. ओके, एंड देन probably very good chance that again it will try to go up. But ठीक है, हमने देखिए नेचुरल गैस में पिछले 1-1.5 साल से जितनी भी बड़ी स्विंग्स है ना, सब ऑलमोस्ट करेक्ट हुई है, सब करेक्ट हुई है. और यहाँ पे जब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कुछ ध्यान देना है, तो दैट एक्चुअली मीन्स कि यहाँ पे ध्यान देना है. नाउ समथिंग हैज चेंज्ड इन दिस डिक्लाइन इन द नेचुरल गैस मार्केट. ओके, ये बात तय है, समथिंग हैज डिक्लाइन. नाउ दिस move can be
start of a bigger down move in coming weeks. ठीक है, तो या तो ये मूव एक पहला लेग है बड़े कैपिचुलेशन बड़े डिक्लाइन का आने वाले कई हफ्तों महीनों के लिए, या फिर ये एक फेक सेलिंग है फॉर अ वेरी ह्यूज अप मूव लाइक दिस। ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कि ये किसका हिस्सा है, ये अप मूव का हिस्सा है या ये डाउन मूव का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पता ऐसे लगेगा दोस्तों दैट what it does here will tell you the story। ठीक है, how it behaves in this slab of say 330 to 290, 290 से 330, इस स्लैब में ये जिस तरीके का प्राइस एक्शन बिहेव करेगा उसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि वेदर इट इज गोइंग टू स्टेज द फुल एंड फाइनल अप मूव टिल 510, ओके, और अ डाउन ट्रेंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन नेचुरल गैस। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, सो इसलिए फिलहाल 290 से 330 ये एक ट्रेडिंग रेंज है, इसको आप प्ले कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप प्ले कर सकते हैं प्रोवाइडेड 290 टू 330 अगर ये स्लैब में आपको प्ले करना है तो आपका एंट्री पॉइंट जो है आई थिंक वो प्रिसाइसली 290 टू 88 के आसपास होना चाहिए अगर वहां पे आता है तो, एंड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ नॉट मोर देन 275, दैट्स इट। ठीक है, एक तो ये ट्रेड नंबर वन, एक ये ट्रेड हमारे पास दिख रहा है। दूसरा सबसे बेस्ट क्या तरीका है कि अभी कुछ एंटीसिपेट मत करो, कुछ बायस मत रखो, कुछ मत करो, लेट इट कम हियर एंड देन वी विल सी व्हाट टू डू। ओके, फाइन। Now many people they are stuck in natural gas, so this is what will happen when you miss the sweet trades। okay, तो यही चीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अभी आज और कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा एंड देन अगेन वी शुड सी द अप मूव। टुडे इट इज मेकिंग इनसाइड बार, आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल डाउन मूव 6685 वगैरह का लेवल्स थोड़ा सा और नीचे आए तो हम इसे बाय करेंगे। आज मैंने बाय कॉल ऑलरेडी दिया हुआ है ग्रुप में, बट एज ऑफ नाउ the entry has not come, probably tomorrow we may get an entry। और जो कल मैंने क्रूड में एक्सप्लेन किया था वही व्यू है 7100 7150, these levels are pretty much expected and let us see if we can get a safe entry। as I explained, safe trade करना है क्रूड में because the run up is so huge so fast and the volatility will increase, the daily range will increase, right? So do not mess with crude, safe trade करिए और एक with fixed stop loss। So 7150 this should be the target on crude oil, holding the 6400 mark, right? So इसमें एंट्री सबसे बेहतरीन एंट्री दोस्तों यहाँ मिलेगी somewhere near 65 to 6600 पोजिशनल ट्रेड के लिए, स्टॉप लॉस 6400 एंड टारगेट सिंगल टारगेट होगा 7100 एंड मे बी 7150। okay, in between intraday you can do lot of long short both trades you can do on a 30-minute चार्ट। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर में डिक्लाइन हो चुकी है 752, स्टिल इट इज वेरी मच at the upper end, right? And we don't know what is going to happen. Now tomorrow will be a crucial day for copper as per this pattern। okay, so tomorrow will be a very crucial day for copper। if there is a gap up opening above like 758 then we will definitely try to buy copper with a stop loss of say 743। एक तो ये ट्रेड है, ठीक है। दूसरा अगर फ्लैटिश खुलता है तो कुछ नहीं करेंगे, 760 के ऊपर कुछ देखेंगे ट्रेड लॉन्ग करने का, या फिर अगर ये ब्रेक करेगा इस रेंज को तो ट्रेड बेसिकली 740 टू 760 दैट इज सॉर्ट ऑफ अ चॉपी जोन। इसमें अगर आपको कुछ दिखता है तो आप कर सकते हो, ट्रेंडिंग मूव इसके ऊपर या इसके नीचे ट्रिगर होगा। ओके, द डिसीजन टाइम इज कमिंग इन कॉपर, डोंट गेट अननेसेसरीली trapped because this is what it would like to do and purposely it is keeping itself very small narrow range because before the big move starts it wants to trap people। so इसमें फंसिए मत, एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग मूव आपके सामने आ रहा है। let it start the move and then you can participate later on। ओके, बाकी कमोडिटीज में जिंक बुलिश थे हम, और जिंक पे कल मैंने बुलिश आपको एक ट्रेड भी एडवाइस किया था, इफ यू रिमेंबर दिस ट्रायंगल ब्रेकआउट ट्रेड जो मैंने कल आपको दिया था कि इसे आप बाय कर सकते हैं, 312.15 का पहला टारगेट है। सो आई थिंक दैट ट्रेड इज वर्किंग नाइसली, 302.5, सो वेरी नाइस टू सी जिंक वर्किंग वेरी ब्रिलियंटली। एल्यूमिनियम
marching away towards the previous all time high of 260, right now trading at 250. I think aluminum में कल भी एक gap up होगा. I think it has trapped very nicely some good bears, and I think aluminum is going to run full throttle. So these are all bullish metals. ठीक है, तो इसमें अगर आप लॉन्ग हैं तो आप ट्रेल वगैरह कीजिए, आपको न्यू हाइज वगैरह बहुत ही डेफिनेटली मिलेगा. लेड में वही आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं, एंड लेड विल ऑल्सो परफॉर्म. लेड का मूव बहुत ही यूनिक होगा. इट विल बी लाइक एक दो शॉट्स एंड सीधे 220, या तो नहीं होगा या तो होगा इसी तरीके से होगा. ओके, निकल में एज ऑफ नाउ अगेन रीचिंग टुवर्ड्स दी 1800 level. In fact, it did tested 1793. So nickel is also bullish, and I think it can definitely reach towards 1900 sort of a level. Play करना काफी difficult होगा because these are moving in a very fast and furious manner. So it will be very risky to play. बट डेफिनेटली इस समय ये बुलिश है. गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो गोल्ड में बहुत अच्छा एक मूव ट्रिगर हो रहा है अपसाइड में. एंड गोल्ड पे वैसे तो मैं बुलिश हूँ, but I'm still waiting for a good entry. Okay, now with so many candles giving a breakout, जैसा कि कल मैंने कहा था कि गोल्ड अगर 40,050 के ऊपर निकलता है, दैट मीन्स इट इज नॉट इंटरेस्टेड टू कम मच डाउन, एंड इन दैट केस अपना जो टारगेट्स है 49,000 वगैरह ये धीरे धीरे आएंगे. ओके, नाउ राइट नाउ व्हाट वी कैन डू इन गोल्ड इज वी कैन अज्यूम दैट okay, this 47,300 is the floor, and any dip that comes अब हमें इसमें buy करना पड़ेगा, because I think this up move has started, and I really doubt whether it will actually come all the way till 47,200. मुझे नहीं लगता कि अभी इतना नीचे रिट्रेस करेगा. बट सपोज इन एनी केस अगर गोल्ड हमें इस कैंडल के बॉटम पे यहाँ पे मिलता है 47,800, if you get gold at 47,800, then we can buy with this as a stop loss. टारगेट सेम होंगे, टारगेट सबका टारगेट है 49,000. ठीक है, सो दिस इज द टारगेट जहां से हर बार एक डाउन मूव शुरू होता है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू प्ले दिस. एज ऑफ नाउ एंट्री डिसाइड हो चुकी है 47,800, 47,300 स्टॉप लॉस, टारगेट 49,000. ठीक है, एटलीस्ट 48,600 ये तो हमें मिलेगा, जो कि एक अच्छा 800 पॉइंट्स का अप मूव है. आई थिंक दैट इज वेरी नाइस. 80,000 पर लॉट होता है, सो यू कैन प्ले एटलीस्ट टिल दिस ऑल्सो, एंड यू कैन ट्रेल ऑल्सो. ठीक है, सो गोल्ड में एक्शनेबल ट्रेड अभी मैंने एक दे दिया है. सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 62,000 की अप मूव इनसाइड बार डायरेक्ट निकल गया बिना नीचे आए. सो सिल्वर में आई थिंक आई विल बी ऑन बैक फुट. ठीक है, चेज नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे सिल्वर को, बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर टू बाय एट as low as possible. I don't wish to be a chaser in the gold and silver market. ठीक है, अगर आप तेजी में हैं तो ठीक है, आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका स्टॉप लॉस 60,000 होना चाहिए. और इस समय सिल्वर अगर पूरी टारगेट्स को कंप्लीट करता है, then very easily it can rally say 1,000 points more, and probably all the way till 63,500 also. So lot of room is there, बट मेरे हाथ में अभी ये नहीं आया है. ठीक है, चलिए दैट्स ऑल ऑन द कमोडिटीज मार्केट. वेरी क्विकली एक बार हम क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं. सो बिटकॉइन हैज मूव्ड वेरी वेरी नाइसली. वेयर इज इट मूविंग, where is it moving towards? It is moving towards our pre-decided target of what? Of 46,500 level. ठीक है, now this is something which should be a case study for all budding technical analyst or chartist, that how you analyze thing. Okay, how you analyze the plan A and plan B, that will decide how much you will survive in these markets. Because if you are only planning for plan A, what if that doesn't unfold and plan B starts to unfold? What will you do? So अगर आपका plan A और plan B नहीं है टेक्निकल्स में, टेक्निकल एनालिसिस में, तो फिर आप बहुत लेट हो, आप कैचअप नहीं कर पाओगे. ठीक है, नाउ इसमें एक रीकैप कर देता हूँ कि हमने ट्रेंड को, बेरिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए यहाँ पे शॉर्ट एडवाइस किया. 2000 पॉइंट की डिक्लाइन होती है, ये रिवर्स हो जाता है, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो समझ जाना कि इस समय देयर इज सम bottom which has been made here, and we will start moving to retest the 200-day moving average, which is nothing but 46,500. This would also imply that this big head and shoulder pattern which got triggered, which ideally
should have generated a huge fall in the market because of the neckline that has become invalid, and that will trigger the first impulsive move towards 46,500, maybe even 48, but let us keep 46,500 as the first short covering leg. तो कोई भी इसके बाद डाउन मूव आएगा, सिर्फ और सिर्फ अब बाय साइड में प्ले करना है बिटकॉइन में टिल 52,000, दैट इज वेयर द नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लाइज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को याद रखिए। बिटकॉइन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिलहाल अभी ये और 2-2,500 पॉइंट जाना चाहिए। 46,500 हमारा पहला टारगेट है और वो डन एंड डस्टेड हो जाएगा थोड़ी देर में। ETH इथेरियम 3155 कल भी डिस्कस किया कि 3300 का टारगेट है, विच इज डेफिनेटली कमिंग, राइट, 3300, एंड राइट नाउ 3155 पे है इथेरियम। सो वेरी नाइस, वेरी गुड मूव्स coming on Ethereum, very nice. I think 3300 is almost a done deal. ठीक है, चलिए let us have a look at the equity markets. Let us have a look at the equity market. So today there was a decline which was actually pretty much expected, क्योंकि Friday भी हमने shorts recommend किए थे to be carried on the weekend. So let me open the Nifty chart and let us do a recap of what all things we have discussed in last few days. चीज़ों को सिंपल रखते हैं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया दैट दिस इज अ वाइड रेंज कैंडल। ठीक है, कौन सा कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ? इस ब्लैक कैंडल, दिस ब्लैक कैंडल, इट्स अ वाइड रेंज कैंडल. So you got a downward flush, similarly you will get an upward flush. Once you see an upward flush you should short, and यही चीज हमने यहाँ पे एडवाइस किया. And then these are long tails which must be re-auctioned. ठीक है, आपको याद होगा अनफिनिश्ड बिजनेस के बारे में मैंने कहा था कि बाजार तेजी में तो है बट बिना किसी स्ट्रक्चर के है, अपने बिजनेस को बिना कंप्लीट किए ऊपर जा रहा है, which means it will not sustain and it will have to come down again. So this is the story as of now. So it can still fall all the way till say just shy of 17,000, right? But I think market is broadly going to remain in this 17 to 18,000 zone for many days and few weeks to come, at least till UP election. एंड 200 पॉइंट्स प्लस माइनस हो सकता है, यानी पैनिक हो सकता है। मार्केट की रेंज आप देख रहे हैं कि 400 पॉइंट निफ्टी की मूव हो जाती है, तो 200 पॉइंट नीचे भी हो सकता है और 200 पॉइंट 18,000 के ऊपर भी हो सकता है, बट ब्रॉडली 17 से 18 के रेंज में ही बाजार रहने वाला है काफी दिनों तक। ठीक है, आज के लिए जो मॉब लेवल था, वीकली एंड डेली मॉब लेवल जो था, मार्केट उसके नीचे खुलता है और कैरी ऑन करता है, और 17,150 एंड 17,350, those both the levels that we had discussed in yesterday's session, all those levels got done and dusted. ठीक है, so as of now I think this is pretty much very simple जो चल रहा है overall. I think we should go with this triangle assumption as of now instead of that channel assumption. Okay, so I think this is the triangle part is going to work for right now for some time. Okay, later on what you can do is if you see this downtrending line providing support, suppose ये यहाँ पे आता है, again it moves up, okay, and suppose ये again आता है, again it moves up. If you see this getting retested couple of times in near future, then what you should do as an analyst is you should just copy it and paste it over here to create a channel. और ये चैनल दोस्तों जब इस ट्राइंगल से बाजार बाहर निकलेगा तो इसका प्रथम टारगेट ही होगा ये चैनल टॉप, विच विल बी द न्यू हाई टारगेट फॉर निफ्टी व्हेनेवर इट हैपेंस। मैंने आपको कह दिया है कि मुझे नहीं लगता कि 10 मार्च के पहले कोई भी ट्रेंडिंग मूव आने वाला है, नंबर एक बात। इवन 10 मार्च के बाद भी अगर ट्रेंडिंग मूव आएगा तो न्यू हाई, जैसा कि कल मैंने वीकली एनालिसिस में एक्सप्लेन किया था टाइम साइकिल्स के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि 10 अप्रैल के पहले न्यू हाई बनेगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट 175-180 डेज टाइम साइकिल, एंड आई थिंक if you check from this date to the next expected date, that comes around 10th to 13th of April. ठीक है, चलिए, now what's the view for tomorrow session? It is very simple. आज का जो लो है 17,100, that will be your mob level. So this is our mob level. Okay, basically नीचे नीचे में शॉर्ट नहीं करना, बिकॉज आई थिंक देर विल बी गुड चांस टू गेट ट्रैप्ड. You can plot this as a trend line, keep it ready on your charts, and somewhere here
you can look for a sign of reversal. Whenever you see a reversal from this slab, definitely आप इसमें long कर सकते हैं, and you can keep say 16,800 as a stop loss, and again अगला target near about 18,000 होगा, और फिर हम वहाँ पे उसे watch करेंगे कल के लिए. Today's bottom is very crucial, so the make or break level for tomorrow's session will be, say roughly I'm writing say 17,100 level, okay, which is almost today's bottom. And below this it might just create a panic towards say 16,900 level, 16,850 levels, and above this we are safe to start the reversal. It may not happen exactly tomorrow, but maybe by Wednesday etc we can see the again 17,625 एक ही टारगेट होगा 17,625. ठीक है, सो ये कल का एनालिसिस है. 17,100 को आपको वॉच करना है. ये पूरा जोन जो है यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग बिल्कुल भी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड यू माइट गेट बेयर ट्रैप, एंड दैट इज व्हाट it would like to create a bear trap over here, so please be cautious. ठीक है, so that's all. इंडेक्स पे ज़्यादा बात नहीं करना है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है इस मार्केट में, so let us wind up the index analysis as of now. Okay, so today we got a very nice decline in the Nifty. Friday we had already, the inventory was very nice, it was placed bell shaped curve, so elongation was almost guaranteed, and looking at the space of this candle, this was very much certain actually. अगर आप स्क्रीन पे थे तो आई थिंक आपको ये मैनेज करना चाहिए था. एक बार लाइन चार्ट की तरफ चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में अब रखने वाली हैं. ठीक है, कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ. नंबर वन, व्हाट आई एम सीइंग इज, let me, okay, so number one is this, there is a very clear cut head and shoulder pattern being formed on the RSI. Now I rarely look at these indicators, but whenever I do look, they are always going to point out something critical. Okay, so this is a very very clear cut head and shoulder pattern on the RSI, right? So we might go little more down as of now to complete this, and then the real action will start. Okay, so if this head and shoulder doesn't translate on the lower side, what you will see is a very fast move towards again that 18,000 level. Okay, again towards that 18,000 level, but that doesn't mean that market will make new high. समझ रहे हो बात को आप? मार्केट नीचे में पैनिक कराएगा एज इफ कि न्यू लोज आने वाले हैं. ठीक है, और जब ये पैनिक होगा वहीं से ये पलटी मारेगा, एंड अगेन उतनी ही स्पीड में ये लेके जाएगा ऊपर, और वहां पे जब लगेगा कि बस अब तो एकदम न्यू हाई आने वाला है, अगेन देयर विल बी पोपट. ठीक है, अगेन देयर विल बी सम विड्रॉल सिम्टम्स. तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए. ये टेक्सचर मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें फंसे नहीं. ठीक है, नाउ the line chart is self-explanatory. It's very clear that this triangle is looking certainly to hold. We have this closing pivot which is 17,100. इसीलिए कल के लिए मैंने 17,100 का लेवल रखा है दोस्तों, क्योंकि लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे बनता है, बट इंट्राडे इसके नीचे डेफिनेटली ये ट्रिप कर सकता है, और जैसे ही इसके ऊपर आएगा शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी और मार्केट बूम. तो ये जो लाइन चार्ट है एंड ऑफ द डे में आपको ये दिखाएगा ही नहीं कि ये कभी नीचे गया. इट वुड लुक एज इफ दिस ट्राइंगल इज मेंटेन्ड. ठीक है, ये कुछ नुआंस हैं लाइन चार्ट के जो जनरली मैं सिर्फ अपने ट्रेनिंग में ही इसको डिस्कस करता हूँ. द प्राइस एक्शन ट्रेनिंग which is scheduled on what? Which is scheduled on this coming weekend, Feb 12th and 13th. We are today sitting on Monday, so hardly couple of days are left. If you are interested to learn from me the price action, the technicals and the VWAP setups, mob level, forex trading, commodities, पूरा power packed 2 दिन का full day session होता है. And once you register, you will be added in our Telegram group for extended learning and discussions for a period of 3 months. So hurry up if you are interested. Please don't keep it on Friday because I will not be in a position to take anybody on Friday. आज ज्वाइन कर लीजिए, ये बेहतर होगा आज और कल में. ठीक है, so I think that's all on the Nifty front.
Let us have a look at the bank nifty and then we will start the stock queries. Now again, बैंक निफ्टी में कल हमने क्या डिस्कस किया था? लेट मी ओपन दी चार्ट. बहुत ही सिंपल कल का एनालिसिस आई थिंक वाज अ फैबुलस एनालिसिस, अगर आपने ध्यान से सुना होगा. ठीक है, सो इट वाज वेरी क्लियर दैट टिल दिस लेवल इज नॉट क्रॉस्ड वी आर बेरिश ऑन बैंक निफ्टी. सबसे पहले 21 डीएमए के आसपास हम टेस्ट करेंगे एंड देन थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे एंड 37,400 200 दिस शुड बी एक्चुअली दी target for the decline. Okay, and from here again we should start the up move that should take towards 39,600 and 40,000 level. क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में we are almost going to make a rising wedge structure something like this. Okay, so thereby we will come till the 65-day moving average. This will also mean the 61% retracement of this entire leg, and from here we should again go towards that 40,000 level in this particular manner, thereby maintaining this entire structure as nothing but a corrective one. और उसके बाद एक असॉल्ट जो है हो सकता है, जिसके बाद दैट फाइनल रैली कैन स्टार्ट. ठीक है, नाउ इतना लंबा चौड़ा बात नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं हम लोग कि बैंक निफ्टी में अभी जो बेरिशनेस है आई थिंक दैट शुड गेट ओवर समवेयर नियर 37,200 और मे बी 37,600 ऑल्सो. ठीक है, सो बट इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए ताकि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा बेरिश के चक्कर में कुछ एक अप मूव को मिस कर जाए, या आप पहले ही इसे बाय कर लें, you know, thinking that 40,000 is coming and then it goes all the way till 37,000 and अगर उस समय गलती से ये फिर रिवर ब्रेक डाउन कर देता है तो आप बहुत ऊपर के लेवल पे आप फंस जाओगे. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल चार्ट है. आप मैं इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आप भी अपने ट्रेडिंग व्यू में से ड्रॉ कर लें. ओके, ताकि मार्केट आर्ट में जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दैट दिस चार्ट इज नाउ वर्किंग. ओके, एनीवेज, सो व्हाट विल बी द मेक और ब्रेक लेवल फॉर टुमारो, क्योंकि मॉब लेवल के हिसाब से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में. प्राइस एक्शन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है. नाउ if I have to give one level for tomorrow's session for Bank Nifty, क्योंकि Bank Nifty थोड़ा सा अभी weak है, so what I will have to do is I will have to make this chart a 75-minute chart, and then I will have to give a critical mob level, and I feel this is a critical mob level for tomorrow. Okay, because this is where the actual activity has happened and that comes to somewhere near 38,300. तो दोस्तों कल का जो मेक और ब्रेक लेवल होगा, द मॉब लेवल फॉर टुमारो सेशन शुड बी 38,300, meaning which below this we are bearish for first target of what, 37,600 and second target of 37,200, which should be a critical bottom for bank nifty, where the trend line will also come like this and this should be a good bottom. Okay, सो ध्यान दीजिएगा इस चीज को. 37,200 37,400 दीज आर गुड लेवल्स, बट डायरेक्टली बाय मत करना, रिवर्सल होने दो. रिवर्सल का क्या मतलब होता है, जैसा ट्रेनिंग में मैंने एक्सप्लेन किया है, लुक फॉर प्राइस एक्शन बेस्ड रिवर्सल एंड देन ट्राई टू बाय द ब्रेकआउट और वेट फॉर द पुल बैक एंड देन एंटर ऑन द पुल बैक कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस फॉर अ कंटिन्यूएशन मूव इन द फॉर्म ऑफ से 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो ये होगा कल का लेवल्स, कल के एनालिसिस. 38,300 के ऊपर एक इजी मूव आएगा टुवर्ड्स दिस व्हिच इज 38,900, द रीटेस्ट ओवर दिस एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट हो जाएगा 39,200. ओके, सो दैट्स ऑल ऑन बैंक निफ्टी. लार्जर पिक्चर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एकदम एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इसमें ज़रा सा ख्याल, इसमें भी वही स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. इफ आई ओपन द लाइन चार्ट यू कैन सी the RSI has started to make this sort of a head and shoulder pattern over here. Okay, but I think this is still okay. This is not that scary or that bad, but yes, the nifty one is slightly little scary, but I don't think so that it will be able to scare. ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स स्टॉक क्वेरीज. और दोस्तों चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए और
जिन्हें भी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, इफ आई लुक एट दी ब्रॉडर मार्केट, सीएनएक्स मिड कैप आज 1% डाउन था, स्मॉल कैप में भी आज गिरावट थी. सो ठीक है, दीज आर फाइन, दीज आर ऑलमोस्ट ओके. And stock specific में private bank was down by almost 2.5%. PSU banks again trying their best to move further higher, and couple of PSU banks have moved very very greatly. And बाकी जो सेक्टर्स थे सब में एक एवरेज डिक्लाइन एक एक 1.5% की हुई है. सो आई थिंक ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड डिक्लाइन. ठीक है, थोड़ा डिक्लाइन भी ज़रूरी है ताकि स्टॉक्स के जो इंडिविजुअल जो चार्ट्स होते हैं वो अच्छे बन जाएंगे, तो फिर बाजार के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा सस्टेनेबल अपमूव करने के लिए. ठीक है, सो लेट अस take stock queries and then we can wind up today's session. So right now I can see HDFC as the first query. फटाफट लेंगे. कल के वीडियो में मैंने बहुत स्टॉक क्वेरीज किया था. सो HDFC लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि ये 200 DMA के आसपास है, इसको निकल जाओ, एग्जिट करो, एंड इट इज इन अ डाउन ट्रेंडिंग चैनल. सो आई थिंक HDFC I think it is going more down towards 2350 or 2280. I can clearly see this move coming. Okay, so don't buy as of now. Let this channel, let this downtrending move get over, and possibly then try to buy this level. Now you see a very interesting thing is happening in market. And what is that? कि जब मैंने लोगों को ये कहा कि ये ब्रेक हो चुका है और पुल बैक पे आप इसे एग्जिट कीजिए, तो लोगों ने नहीं एग्जिट किया. करेक्ट. ये क्यों कहा था हमने? ये इसलिए कहा था क्योंकि जो चीजें डाउन ट्रेंड में हैं वो डाउन ट्रेंड में रहेंगी अनलेस दे आर गोइंग टू रिवर्स. तो जब वो रिवर्स हो जाएंगे इन फ्यूचर, तब आप कभी भी बाय कर सकते हो. ब्रॉडली स्पीकिंग आपको वही लेवल्स मिलेंगे. But if you don't exit on pullback, then what will happen is you are creating a sure shot recipe for yourself to get trapped in this market, not now, but after few months. जब मार्केट एक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में चल जाएगा, देन आपकी आज की ये हैबिट कल बहुत भारी आप पे पड़ेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. So as of now, HDFC Bank is certainly bearish, going towards 2350 and 2280. हिंडाल्को की तरफ चलेंगे दोस्तों. अगला क्वेरी है हिंडाल्को. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, रिलायंस देखो बाइंग जोन में आ रहा है. सो हिंडाल्को में क्या कहना है? हिंडाल्को में ऑलरेडी मैं बुलिश हूँ, बहुत दिनों से बुलिश हूँ. एंड वेरी इजी चार्ट, वेरी सिंपल चार्ट. एंड इफ यू रिमेंबर, ये मैंने एक पहला टारगेट दिया था, दिस गैप एरिया ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ अ 520. वंस वी ब्रोक अबाउट दिस जोन ऑफ 476, यही टारगेट था, वो टारगेट हो चुका है. सो हिंडाल्को सी अर्निंग्स आ चुकी हैं. हिंडाल्को में कोई भी गिरावट आती है तो बाय करना है. 496 अब एक बहुत ही अमेजिंग लेवल है. 496 अगर वहां मिले तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 470. टारगेट एक ही टारगेट दूंगा हिंडाल्को में, चाहे जितना भी दिन लगे. 590 दैट इज द टारगेट फॉर हिंडाल्को. ओके, डोंट get yourself trapped buying at random places. For God's sake, प्लीज सीखो. ठीक है, प्लीज बेसिक सीख लो. आप टेक्निकल्स का बेसिक सीखोगे और मेरा लाइव सेशन देखोगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है, मेरे से मत सीखो, किसी और से सीखो, खुद से सीखो, फ्री में सीखो, बट सीखो 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 सीखो. रिलायंस इज द नेक्स्ट स्टॉक. रिलायंस देखिए 2250 के आसपास आने वाला है. आई थिंक टुमारो इट शुड कम. दैट इज वेयर यू शुड स्टार्ट टू बाय इन कैश. रिलायंस पहले ही बता दे रहा हूं मैं, 2250, दैट इज वेयर यू शुड स्टार्ट बाइंग इन कैश. इसमें एक ही स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, लगभग 2170 का, 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा. ठीक है, तो थोड़ा 2250 पे आप बाई की, थोड़ा 2300 पे करें, थोड़ा 2250 पे करें, थोड़ा और अगर एक न्यू लो बनाता है वहां पे करें. बेसिकली दिस 22 to 2300 यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इसे लैप अप करके रखना है. बेसिकली Reliance should do something like this. Okay, and then we are expecting an up move to happen in Reliance. ठीक है, इस तरीके से पीस बाय पीस लेके चलो. बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि पहला जो लेग है उसको अगर आपने नहीं भी पकड़ा है तो पेशेंस रखो, सब में आपको मौका मिलेगा. क्योंकि स्टॉक्स दे डोंट जस्ट मूव बाय प्राइस, दे मूव आल्सो बाय टाइम. सो रिलायंस का जो टाइम है फॉर अ बिग मूव, आई थिंक दैट इज स्टिल नॉट कम, बट surely this leg will make some decent bottom for future. So I hope I'm clear on Reliance.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई थिंक देयर वाज सम सुपर चैट. लेट मी चेक. चिन्मय मंडल, थैंक यू सो मच फॉर योर super chat. HDFC Bank is in buying zone. Let me just check. At least somebody did the courtesy of doing a super chat. HDFC Bank. सी वैसे मैं किसी को बोलता नहीं कि सुपर चैट करो या कोई चैनल का मेंबरशिप वगैरह लो. बाकी जगह पे लोग मेंबरशिप रखते हैं, मैं सब फ्री रखा मैंने. सो HDFC बैंक इज वेरी सिंपली पुट, बाय करिए कैश में 1450 इस स्लैब में. एंड आई एम कीपिंग ओनली सिंगल टारगेट, इवन विद लॉट्स ऑफ FII सेलिंग, even with everybody turning bearish. I'm not very bullish, but I think I will go by the technicals, and that simply suggest that buy here. यहाँ पे बाई करिए. 1320 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा. एंड एक ही टारगेट मैं दूंगा, 1820. जिस दिन ये हो जाएगा आप थोड़ा प्रसाद मुझे भेज देना, ठीक है. सो आई एम गोइंग विद दिस व्यू इन HDFC बैंक. दैट डजंट मीन यू विल सेल योर हाउस एंड पुट ऑल द मनी इन वन बास्केट. नो, ऐसा नहीं करना है. वाई? बिकॉज देर इज ऑल्सो दिस स्केरी हेड एंड शोल्डर थिंग, ठीक है. सो वॉट विल हैपन when you have such a clear pattern? It will break, but it will not sustain. And after this false breakdown will come a good cracking up move, ठीक है. सो ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हम देख चुके हैं कई बार चार्ट्स पे. तो इसीलिए हमें पहले राउंड में यहाँ पे पैनिक में लैप अप करना है. थोड़े शेयर्स को लैप अप करके रखिए. जब शुरुआत हो जाएगी तो उसमें जो इंटरमिटेंट डिप्स आते हैं वहां पे आप ऐड करिए. दैट इज कॉल्ड एज पिरामिडिंग. इस तरीके से खेला जाता है. यहाँ पे वैल्यू बाइंग, यानी जब एक डिस्काउंट है मार्केट में तो आपने थोड़ा ले लिया. अगर फ्लॉप हो गया तो थोड़े पैसों पे लॉस होगा. अगर चल पड़ा तो यहाँ की एंट्री प्लस यहाँ की एंट्री एवरेजिंग करेंगे तो अच्छी आपको प्राइस मिलेगी. प्लस मोमेंटम तब तक बन चुका होगा स्टॉक में, ठीक है. सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए. बहुत डिटेल में एनालिसिस कर चुका हूँ, बहुत सारी इसमें एजुकेशनल बातें भी पता है मैंने. इसे आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए, काम आएगा फ्यूचर में. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. सन फार्मा. सन फार्मा यार बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट रिपीट क्वेरी है. सन फार्मा देखो बुलिश है, कल भी एक्सप्लेन किया था. अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन में है यहाँ पे, ठीक है. चैनल रेजिस्टेंस, सो प्रॉफिट कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए. अगली बार कोई भी करेक्शन आता है 820 पे बाय करेंगे. 785 के स्टॉप लॉस से अगला टारगेट बहुत ऊपर है. 1005 रुपीज, यानी 1005, ये अपना टारगेट है सन फार्मा में, ठीक है. लार्सन एंड टूब्रो, प्रज्वल सिंह का क्वेरी है कि लार्सन एंड टूब्रो बाय कर लिया है. बाय करने के बाद क्यों बता रहे हो, पहले पूछ लेते. लार्सन एंड टूब्रो दोस्तों, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे बताइए, ठीक है. लार्सन एंड टूब्रो, पहले तो वीकली चार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है. लेट अस हैव अ लुक एट द वीकली चार्ट. सो वीकली चार्ट इज लुकिंग गुड. लार्सन एंड टूब्रो, लेट मी टेल यू that I have been maintaining the bullish stance even in the last decline that came sometime in the late November. और 2100 का टारगेट था, वो 2100 जो हो चुका है. Now right now if I look at the long term story of Larsen and Toubro, it is still very very fabulous, very very bullish. The only problem क्या है कि ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, कि जब भी कोई स्टॉक पिछले अपने डिक्लाइन का 1.6 फिब एक्सटेंशन कर लेता है तो थोड़ा ना ये डाइसी बन जाता है. हालांकि मुझे ये स्टॉक अभी भी बहुत ही रोबस्ट लग रहा है. और एक व्यू बताऊं तो 1760 जब तक ये होल्ड है ना, दिस स्टॉक कैन एक्चुअली डू 2700. क्या कहा मैंने, 2700 तक जा सकता है, ठीक है. नाउ शॉर्ट टर्म में कैसे डील करेंगे, शॉर्ट टर्म में कैसे डील करेंगे, तो इसमें एक बार मैं शॉर्ट टर्म में देख लेता हूँ, ठीक है. तो शॉर्ट टर्म में हमें ये करना चाहिए दोस्तों. टू थिंग्स वी कैन डू. Number one, what we can do is, number one, what we can do is buy some shares here at 1880, 1875, 1860, somewhere here, and keep a stop loss of 1730. Now you will say that's a very wide stop loss, but yeah, that's the only way to play this. दूसरा तरीका क्या है, अभी इसको छोड़ दो और जब ये कुछ ब्रेकआउट करे तब बाय करो, ठीक है. इन दैट केस ये यहाँ भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा बाय करो. अगर कंटिन्यू होता है थोड़ा एवरेज करना पड़ेगा, और ये आपका स्टॉप लॉस है. और अगला जो टारगेट है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा. इन दैट केस एटलीस्ट लाइक 2150 टू 2200 ये टारगेट्स आएंगे,
ठीक है. So you can play part by part like this, or you can wait for a consolidation to get over, and then जब ये ब्रेकआउट करता है उस समय फिर आपको बाय करना होगा. बट ब्रेकआउट का भाव ऑब्वियसली ऊपर मिलेगा. ओवरऑल 1760 बहुत ही सॉलिड सपोर्ट लेवल है. नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं. आई थिंक टीसीएस में रोज एक्सप्लेन करता हूँ. आई डोंट नो व्हाई पीपल कीप आस्किंग अबाउट टीसीएस. टीसीएस में आपको 3900 का रेजिस्टेंस है, 3600 का सपोर्ट है. नीचे मिले तो बाय करो, 39 पे बेचो. दैट्स इट. इसी को रिपीट करना है. टीसीएस में पहले बहुत ही बढ़िया रैली हम इसमें कैप्चर कर चुके हैं. आईटी स्टॉक से कृपया दूर रहिए. दे आर ओनली गोइंग टू कंसोलिडेट. दे आर ओनली गोइंग टू ट्रैप पीपल इन दिस लेग. आईटी पैक कल का प्लीज वीडियो देखना. कल मैंने बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है. इफ यू हैव मिस्ड देन प्लीज वॉच इट. बहुत सारी चीजें बताई मैंने. पीडी लाइट, सी एज ऑफ नाउ क्रूड इज गोइंग हायर, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि मैं एक डीपर करेक्शन इसमें वेट करूंगा. वन थिंग आई कैन टेल यू दैट आई एम सीइंग सम टाइप ऑफ एक्यूमुलेशन बाय सम गाइज. ओके, बट एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा. ठीक है, सो लेट इट डिक्लाइन फर्दर. थोड़ा 1-2 दिन रुकते हैं और उसके बाद पीडी लाइट में हम कुछ एंट्री लेंगे. एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग. ओके, देयर इज नथिंग एज ऑफ नाउ. नेक्स्ट क्वेरी है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा. कल भी एक्सप्लेन किया था, अगेन रिपीट क्वेरी है. महिंद्रा एंड महिंद्रा टुडे आई थिंक देयर वाज अ रिजल्ट एंड इट हैज डिक्लाइन. सो कल मैंने क्या कहा था, इस स्लैब में आए तो बाय करना है. स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस रख देंगे हम इसके काफी नीचे 790 सॉर्ट ऑफ, एंड देन एक्सपेक्ट 970,000. सो सेम वही व्यू है. ठीक है. कल का मार्केट कैसा रहेगा, एनी आइडिया? आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए. हम रोज स्टार्टिंग में ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसी, पहले 30-35 मिनट हम सारी मैक्रोज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम स्टॉक क्वेरीज लेते हैं. सो एवरी डे यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन वॉच. ओएनजीसी अगेन रिपीट क्वेरी है. कल वापस से एक्सप्लेन किया था कि those who are holding on the long side, they should keep a trailing stop loss, wait for new highs to come. Stock has a potential to reach 205. If you are waiting for a dip, then you should wait till 150. तो अभी अगर आप लॉन्ग ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप 162 को ट्रेल करना है. सी ये लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा गया है, 162. नेक्स्ट क्वेरी है कोल इंडिया. नेक्स्ट क्वेरी है कोल इंडिया. समबडी इज आस्किंग आरबीआई पॉलिसी और व्यू. सो रेट हाइक्स होना गारंटीड है एंड मार्केट ऑलरेडी उसको फैक्टर इन कर रहा है. ब्रिटिश पाउंड हैज ऑलरेडी द बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द रेट हाइक साइकिल. सो इंडिया भी करेगा. इंडिया के पास कोई और विकल्प नहीं है. रेट हाइक अगर नहीं किया, कल का वीडियो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कल का वीडियो देखो, उसमें अमेजिंग एनालिसिस हुई है, अमेजिंग, रियली माइंड ब्लोइंग. मैंने आज तक किसी इंडियन यूट्यूबर को उतना मैक्रो समझाते हुए नहीं देखा. इन शॉर्ट, आरबीआई ने रेट हाइक नहीं किया तो यूएसडी एनआर पे अटैक हो जाएगा. सिंपल सी बात है. यूएसडी एनआर पे अटैक होगा तो क्रूड ऑयल में डबल वैमी होगी. तो आरबीआई अगर मूर्ख नहीं है तो उसे रेट हाइक करना इज लाइक इट्स कॉट बिटवीन द डेविल एंड द सी. उसको अगर नहीं करना है तो भी करना ही पड़ेगा. नहीं करेगा तो करेंसी पे अटैक हो जाएगा. करेंसी पे अटैक, करेंसी अगर 1% और गया तो क्रूड ऑयल का एक और 1% ऐड कर लो, और क्रूड अगर साथ में 1% ऊपर गया तो 2% ऐड कर लो. यानी कितने हजार करोड़ का नुकसान हो गया. अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक से काम करो. ओके, सो कोल इंडिया लुक्स बुलिश टू मी. यू कैन buy on dip, keep a stop loss of 150 rupees. I think coal India should give one move towards 180 sort of a level. Okay, जनरली दी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसे एग्रेसिव बुलिश वगैरह नहीं होता अनलेस दे कम एट अ वेरी की लेवल्स लाइक दीज लेवल्स. ओके, बट यहाँ पे एक थीम दिख रहा है मुझे, एनर्जी सॉर्ट ऑफ थीम. सो आई थिंक यहाँ पे आप रुक सकते हैं. ठीक है, कीप अ स्टॉप लॉस 152, 153 and this should be a done deal 180 sort of a level we can expect. ये चीज़ है. नेक्स्ट हम चलते हैं एस्ट्रल. आई थिंक एवरीबडी इज आस्किंग द सेम. कल का क्वेरी मत पूछो यार, मैं नहीं लूंगा, एक भी क्वेरी नहीं लूंगा. मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ. एस्ट्रल वेस्ट्रल कल का वीडियो देखो. ठीक है, एस्ट्रल में अभी क्या कर सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, थोड़ा सा और गिरेगा नीचे. अगर लॉन्ग है तो आपको 1900 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है.
नेक्स्ट क्वेरी है बजाज कंज्यूमर. बजाज कंज्यूमर इज द नेक्स्ट क्वेरी. बॉम्बे डाइंग इसके बाद लेते हैं और एमसीएक्स. सो व्हाट इज दिस बजाज कंज्यूमर? सो ऑलरेडी बेरिश काउंटर है, प्रीवियस सपोर्ट पे है, नो ट्रेड, नथिंग. Have I taken the wrong stock or what? It's Bajaj Consumer, correct. नेक्स्ट क्वेरी है विकास समथिंग, विकास सेको. भैया कहाँ से खोज के लाए स्टॉक? विकास इकोटेक लिमिटेड. ओके ओके, पता ही था मुझे इस टाइप का होगा. ठीक है, ये जो टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, जो इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, इनमें मत खेला करो, नहीं तो फंस जाओगे. 5 रुपए का स्टॉक पे क्वेरी पूछ रहे हो आप, 10 रुपए का टाइम वेस्ट कर देते हो मेरा. ऐसी क्वेरीज मत पूछा करो. गोदरेज प्रॉपर्टीज, 5 रुपए के स्टॉक को क्वेरी पूछता है. आई हैव टू बी वेरी हार्श एंड ब्लंट बिकॉज टाइम इज अ प्रेशियस कमोडिटी. ठीक है, ओके, इंटरेस्टिंग. गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक चीज बताऊं दोस्तों, इसमें एक अपमूव तुरंत 1736 का बनता है. अगर ये स्टॉक आपको कहूँ 1490 अगर ब्रेक नहीं करता है तो इमीडिएटली कल परसों में आपको 1740 यानी 180 पॉइंट की अपमूव इसमें दिखेगी. इसमें आप एक ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड भी ट्राई कर सकते हैं कल, कि इसे you can buy near this 1550 sort of a level, keep a stop loss of say this which is say 1450. extreme short term बता रहा हूँ, 2-3 दिन, and book here 1730, that's it. ठीक है, विद स्टॉप लॉस काम करना है. ये छोटा टेक्निकल ट्रेड मुझे दिख गया कि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला है, इसलिए ये मैं शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, दैट्स इट. क्यों ये दे रहा हूँ, ये जब हो जाएगा तब बताऊंगा. जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड की आपको पता होगा कि यहाँ पे मैं क्या देख के ट्रेड दे रहा हूँ. ठीक है, सो दैट इज वाई लर्न प्राइस एक्शन. NXT Digital, NXT Digital, Next Digital Limited, NSC listed company है, so good. As of now, see this stock has been a very volatile kind of a stock. All the bounce they have been sold off, correct? So इस stock से निकल जाइए, आपका जो भी cost है ये ऊपर आता है तो इसमें से निकल जाइए. It is not a good stock as of now. Okay, some volume action is happening. A lot of volumes are coming here. So probably some insiders might be interested to buy. Maybe some game plan is already set. So ऐसे केस में अगर आप डेफिनेटली आप लॉन्ग साइड में फंसे हुए हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर है. सो प्रॉब्ली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्रेल टू दिस 333, try your chance over here, take a chance, and if the volumes are correct indicator, it should again spike somewhere near 570 or 600. तो उस टाइम पे आप निकल जाइए. ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि निकलो, ठीक है, जहां भी फंसे हो कैसे भी करके निकलो. किसी ने रिलायंस पावर पे क्वेरी पूछा है, ग्रेट, ब्लॉक हो जाओगे. बॉम्बे डाइंग, नेक्स्ट क्वेरी है बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हैज ऑलरेडी हिट अ न्यू हाई, सो इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेरी है बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक. सी पीएसयू बैंक में बहुत अच्छी तेजी करा चुका हूं मैं, बजट जा चुका है. एक आरबीआई इवेंट है, try to book profits. ठीक है, so I think this stock Bank of India is resisting at the 200-day moving average. As you can see, last time also it came near this and again declined. So this time also it can do that same thing. So maybe 2-4 रुपए ऊपर नीचे and then again it can decline. If you wish to take your chance, then you can take your chance. If you wish to follow the technicals, then you must exit. ठीक है. Now, I've drawn this line and it doesn't mean that it has broken out. Yes, it looks that it has broken out, but whenever you have a very long decline, don't trust the first breakout. It's always a false signal. ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ इस एजुकेशनल बात को करने के लिए किया था. ठीक है, चलिए. या ब्रिटानिया, सिर्फ ब्रिटानिया दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ कि 3300 और 3800 इस 500 पॉइंट में ट्रेड करेगा. जब भी नीचे आता है तो बाय आप करिए, कैश में करिए और ऊपर लिक्विडेट करिए. दिस रेंज इज लाइक वर्किंग सिंस ऑलमोस्ट 2 years. Okay, and I don't think that it is going to change. Now here one interesting thing I can see on the line chart, and that is there is a there is a uh, breakdown. Okay, sort of breakdown as of now. सो इस स्टॉक में अगर सपोज अब अभी लॉन्ग आपने किया है तो इमीडिएटली इसमें निकल जाओ, और जब तक ये स्टॉक सपोज 150 पॉइंट और नहीं गिरता, यानी 3300 तक नहीं आता या 3200 तक नहीं आता,
तब तक इसमें आप एंट्री मत करो, ठीक है, बिकॉज सम डिसेंट सेलिंग हैज हैपेंड इन दिस स्टॉक, ठीक है. सो इफ यू कैन सी दिस इज द जोन टू बाय विच इज से 3300. 3300 आए तो यहाँ पे आप कैश में बाई कीजिए. 3100 का स्टॉप लॉस होगा. इफ दिस पैटर्न इज स्टिल इंटैक्ट देन वेरी लाइकली टू सी 3850, 3900, ठीक है. एवरी स्विंग you can see these levels coming. So ये इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ है, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म वगैरह नहीं है, बट या जस्ट अ रेंज बाउंड प्ले. दैट्स ऑल वी कैन डू इन दिस स्टॉक ऑफ ब्रिटानिया. इससे ज़्यादा इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं. डॉक्टर रेडीज, सी डॉक्टर रेडीज एंड दिस फार्मा. रेडीज में भी सिमिलर स्ट्रक्चर था, पहले भी बता चुका हूं मैं, दैट इट्स ट्रेडिंग इन अ बिग रेंज, करेक्ट, making a large head and shoulder. So whenever you have a large head and shoulder, I I don't consider it as a head and shoulder. So right now, what you can do in Dr. Reddy's is pharma, selective outperformance will happen, like Sun Pharma is doing. Biocon will soon join. Now this stock is at its previous resistance, ब्रेकआउट, सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है. सो ये अपने एक सपोर्ट जोन पे है, बट इस स्टॉक को कैसे आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि अभी कोई रिवर्सल नहीं है, ठीक है. बट स्टिल आई विल गिव यू वन सजेशन दैट व्हाट यू कैन डू इज you can buy here say around 4200, 4250, but keep a strict stop loss of 3950. If you can afford, then only take a trade. 3950 should be strict stop loss. No if, no but, 3950 hits, you are out from this trade. If that is holding, then it would imply that the monthly chart is still working. In that case, if you hold on to this trade, eventually you will see 5000, but you will have to be patient for at least a couple of months. Okay, so I think I've explained in enough detail. Now rest, if it is up to you. Very good query. If rate hike is coming, then Bank Nifty will fall. That is what it is doing. Correct? आज Bank Nifty गिरा है, कल भी थोड़ा गिरेगा. That is what it is doing. Markets don't move after the fact. Charts are after the fact stuff. Market movement is before the fact. बहुत बड़ी बात कह दिया मैंने गलती से. ओके, सो एमसीएक्स में देखो 1399, 1400 का लेवल है. आई थिंक ये ट्रिप कर रहा है. सो इस वक्त एमसीएक्स से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है. डोंट टेक चांसेस विद दीज. बजट में कुछ आया नहीं. मुझे लगा था शायद कुछ आएगा बेनिफिशियल, बट नथिंग हैज कम. मंथली चार्ट इज थ्रेटनिंग. आई थिंक जस्ट इग्नोर, जस्ट एग्जिट फ्रॉम एमसीएक्स. डोंट सिट ऑन अ होप ट्रेड. एंड जब फ्यूचर में सपोज अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो फ्यूचर में ये टाइम देगा हमें बाय करने को, ठीक है, बहुत टाइम देगा. सो अगर इसे यहाँ जाना है इन दोनों टारगेट्स पे, तो इसे यहीं से होके गुजरना है, ठीक है. सो हम यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे. अभी आई थिंक एनी अप मूव दैट कम्स, better to exit. Don't take chance. We also have a negative crossover of the death cross यहाँ पे हो रहा है. तो आप मे बी इन अ कपल ऑफ डेज यू विल सी सम टेक्निकल पुल बैक, तो आप निकल जाइए. ओवरऑल एग्जिट करना है इसमें से, और जब हमें आने वाले दिनों में एक कन्विंसिंग रिवर्सल दिखे, तब हम इसमें से बाय कर लेंगे, ठीक है. टारगेट्स वही होंगे 1850 एंड देन 2300. डॉक्टर रेडी हो चुका है, करेक्ट. एमसीएक्स हो चुका है. Borosil is the next query. We are almost approaching 1 hour live stream, 1 hour time frame, so I will wind up. Borosil देखिए इस समय ठीक है. The problem is आपका stop loss बहुत deep है. You will have to trail till this point, which is say 335 and 400. Rest it is okay. ऐसे stocks जहाँ पे एक बहुत बड़ा pump हो, उसके बाद they don't go anywhere. What they essentially do is they only trade in this range, ठीक है. तो ऐसे केस में सबसे बेहतरीन एंट्री होती है यहाँ पे. इसलिए आपको लास्ट टाइम देखो यहाँ से पंप हो गया. सो अगर आपको यहाँ आपने बाई किया है, देन यू हैव दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू वेट. अगर आप बीच में बाई करने का सोच रहे हो, देन इट इज अ 50-50 ट्रेड, ठीक है. सो दैट्स ऑल आई कैन से इन दिस स्टॉक. नेक्स्ट क्वेरी है भारती एयरटेल. भारती एयरटेल पे चलते हैं.
एंड भारतीय एयरटेल इस समय यू नो आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि जब तक ये 753 क्रॉस नहीं होता है इट इज बेरिश, राइट? हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंड साइड रेजिस्टेंस टर्निंग इनटू राइट हैंड साइड रेजिस्टेंस, फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है इसने। आई थिंक भारतीय एयरटेल में एक चीज समझ जाइए कि 700 अगर टूटा देन आई थिंक इट इज गोइंग टू स्लाइड। ओके, ये थोड़ा सा मेसी स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर में तो मैं कोई वैसे भी ट्रेड नहीं एडवाइस करता, इसलिए मैं प्राइस नहीं, मैं चार्ट स्ट्रक्चर पे एडवाइस करता हूँ। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये 725 नहीं क्रॉस करता है ये बेरिश है एंड इट कैन कम ऑल द वे टिल 670। ओके, इसमें बेहतरीन ट्रेड आएगा, बेहतरीन ट्रेड आएगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। many stocks they are going to give very nice trades in coming weeks, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। JSW Steel last stock for tonight and then we will wind up. So JSW Steel is doing nothing, simply wasting our time, and overall nothing is happening. That same 600 is a major support and 700 is a major resistance. जब तक इन दोनों को ये break नहीं करता, I don't think this 600 is going to break. I think 700 eventually break होगा, but कितना समय लगेगा we can't say. Okay, क्योंकि it is simply going in this range since so many months, almost 6 महीना हो रहा है। ठीक है, immediately अगर बात करें तो अगर 670 ब्रेक करे then I think 700 should be done. सपोज अगर ये गिरता है तो 628 के आसपास आता है, 625 628, तो यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए 600 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगली चाल में आई एम प्रीटी श्योर कि ये 700 को क्रॉस करेगा। अगर नीचे गिर के ऊपर गया तो फिर डेफिनेटली ये 700 को क्रॉस करेगा। ठीक है, टाटा स्टील अगेन रिपीट क्वेरी है, कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कल का वीडियो प्लीज देखिए। टाटा स्टील एज ऑफ नाउ देखिए बुलिश है, करेक्ट, and very soon you will see this at 1350 1370 1400 levels। इसमें आपको 1050 का ही स्टॉप लॉस रखना होगा, चाहे आपने पहले बाय किया हो या आप अभी बाय कर रहे हो या आप किसी गिरावट पे बाय करें, 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। टारगेट होगा 1350 1400, ऑल these supply levels will be the target on the right hand side over here। ठीक है, नेक्स्ट है Equitas Holdings, again these are all the pathetic counters, nevertheless the rising tide lift all boats, so probably that is what is driving these stocks as of now। see यहाँ पे अब आई डोंट थिंक कोई मेजर ट्रेड है एज सच, अर्निंग्स आ रही है फॉर द टाइमिंग। ठीक है, आप 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हो, बट इन फ्यूचर अगर आपको अप मूव मिलता है तो प्लीज निकल जाओ। आई डोंट लाइक दिस चार्ट एट ऑल। ओके, इट जस्ट दैट इफ बैंक निफ्टी मूव्स 2000 पॉइंट्स ये थोड़ा बहुत ऊपर चल जाएगा, सो इसमें से निकलिए। बाटा इंडिया हैव एक्सप्लेन्ड, ग्लेनमार्क फार्मा one good query and we are winding up after this। Glenmark Pharma as of now unfortunately nothing, no concrete trend or nothing, so just avoid as of now, avoid। as I said these stocks इनका टाइम आएगा, आप लोग प्राइस को देख रहे हो, मैं इनके टाइम को देख रहा हूँ, इनका जब समय आएगा ना तब ये बहुत ही अमेजिंग मूव्स देंगे। एज ऑफ नाउ नो, देयर टाइम हैज नॉट येट कम। ठीक है, विप्रो की बात कर लें तो आखिरी क्वेरी लेना चाहता हूं मैं, अब फ्रेश क्वेरीज नहीं लेंगे। विप्रो की बात करें तो वही टिपिकल अप मूव लग रहा था बट अगेन गिर गया। सो विप्रो में यू कैन डू एनीथिंग इफ यू आर स्टक इन लॉन्ग्स, आपको 522 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और कोई भी अप मूव आता है टुवर्ड्स द 603 व्हिच वाज द लास्ट बॉटम, दैट हैज टू बी एग्जिटेड। आईटी में प्लीज स्टे अवे, पिछले कई दिनों से बोल रहा हूं मैं, कई दिनों से। Suppose you get lucky and it starts a bounce, then somewhere here it can come, but please exit। Okay, don't sit in hope, IT में निकलना है as of now। ठीक है, let me tell you, does this remind you of TCS? Why? Look at this, TCS का चार्ट देखो, जब उसने 2-3 महीने पहले ऐसा ही एक अर्निंग्स के बाद गिरावट शुरू की थी, और कंपेयर करो इसके साथ, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि इस चार्ट में क्या होने वाला है। बेसिकली आई कैन से दैट विप्रो इज लैगिंग टीसीएस बाय 60 or 70 days। नेस्ले में बाय करके छोड़ देना दोस्त, कल भी बताया था,
पेट्रोनेट एलएनजी फ्रेश क्वेरीज मत पूछिए, वाइंड अप करेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी इस समय आई थिंक अर्निंग्स है, नहीं तो सी वैसे तो स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड, करेक्ट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मे बी in coming weeks, I think this stock has some potential to move up. But मैं अभी speculate नहीं करना चाहता because you may never know, they can trip on the lower side. For the time being, I think this 200 and 228 ये चलेगा। आप यहाँ पे निकल जाइए 228 and allow some time. Once we come out of this structure, इससे बाहर जब आएंगे तब इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड होगा। जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता, इसमें लॉन्ग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। there are many stocks which are looking good, okay, but eventually they are breaking on the lower side। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मत फंसो, ठीक है, जब रिवर्सल होगा हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। 1 घंटा 10 मिनट की लाइव स्ट्रीमिंग हो गई। कल के वीडियो में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स लिए थे, बहुत सारी बातें बताई थी इस बाजार के बारे में, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो, कमोडिटीज, लॉट ऑफ थिंग्स वी डिस्कस। सो प्लीज वॉच दैट। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, बहुत आपको हेल्प होगी, मदद मिलेगी। सो दैट्स ऑल। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, all those people who are interested to join for this weekend training, kindly register as soon as possible, don't keep it on Friday, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय माता दी।